Hey everyone, welcome to this live session. So in this class we are going to talk about Article 18, 19, 20 and if the time permits Article 21 as well. So we are 2 minutes early for the class. Let's wait for more number of students and then we shall begin with the class. Any doubts guys? Any issues with the class? Request all of you to please make sure that your internet connection is working fine. Even if you are on time, you are before time, try to refresh and reopen the browser window if the class, if the live session is not reflecting on your screen by 8:37 or after 7 minutes of the stipulated time of the class, because by then I am live, okay? Otherwise you will get a notification on the Telegram or through SMS you will get a notification. If you haven't got the notification, that means class is there and it is the problem at your end. You can reach out to the team in the working hours till 6 p.m, 6:30 p.m. the team, the guys are there. Otherwise you have to check at your end what is the problem. Alright, so any doubts with regard to this particular class? The topics that we had covered yesterday, any doubt in those topics? Alright, Article 17. This is what I told you, that it's a very simple article, so we don't have much to analyze in this. Article 18 is what I left for today. So what is the generic meaning of untouchability? Do you think that the practice of untouchability has been adequately tackled in the country despite legislative enactment? This is what we had seen yesterday, right? Now, modern forms of untouchability, the Bombay High Court validated the restrictions on the movement of the people, AIDS afflicted people. So I told you that HIV Act is there now. So coming to Article 18 Clause 1. Article 18 also seeks to establish equality by abolishing the titles. Title means that the titles like Nawab, Sher Khan, Khane Khas, खान, ठाकुर या कुछ ऐसे जो भी टाइटल्स दिए गए, दीवाने खास या कुछ ऐसा, राय बहादुर, ये सब टाइटल्स नहीं होने चाहिए. नो टाइटल शैल बी कॉन्फर्ड बाय स्टेट. नो टाइटल शैल बी कॉन्फर्ड बाय स्टेट. बीच की लाइन को पढ़ते हैं. नो टाइटल not being a military or academic distinction. If somebody has earned a title out of valor or bravery, out of the passion of service, that is to be recognized. If somebody is a doctor, to be recognized. But other titles which are hereditary in nature, which are conferred by the state, be it a chief minister or any other, right? That is what I had dedicated half an hour to 45 minutes. प्रतीक, आप क्या पूछ रहे हो? आप जो पूछ रहे हो वो कल आधा घंटा पौना घंटा उसी चीज़ पे लगाया है. Now there is an NCBC which is a statutory body. Did you revise the yesterday's class? Good evening everyone. Good evening guys. Let people join in and then only we'll begin with the class. There is a special officer now. आपने क्लास रिवाइज नहीं करी ना? बताओ फटाफट. प्रतीक, you did not revise the class, right? NCBCs के लिए स्टैट्यूटरी कमीशन था. ये मैंने कल कम से कम 6 to 7 टाइम्स बोला होगा, कम से कम. नहीं, पहले ये बताओ ओके नहीं है ना चीज़. पहले बताओ रिवाइज करा था कि नहीं. ऑल राइट, ध्यान से सुनो चीज़ों को. मैंने बोला था. देखो अब स्टार्ट करें. 8:35 पे स्टार्ट करते हैं. कुछ लोग थोड़ा लेट से आते हैं.
सो आर्टिकल 18 ये कह रहा है कोई भी टाइटल जो किसी पर्सन ने खुद अर्न नहीं किया, जैसे परमवीर चक्र या फिर कुछ ऐसा, उसके अलावा कोई भी ऐसा टाइटल स्टेट क्राफ्ट नहीं दे सकता। इंडिया एज अ नेशन स्टेट नहीं दे सकता। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे टाइटल्स नहीं दिए जाने चाहिए। Abhishek, you would be able to memorize these things, okay? Facts would be like a cake walk. धीरे धीरे से अगर रिवाइज करते रहोगे, अगर इसी कोर्स की पीपीटीज को फॉलो करते हो तो कम से कम एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स आपकी रिवीजन हो जाएगी। आई कैन एश्योर यू दिस मच। अगर इधर उधर भटकोगे, डाइग्रेस होगे तो फिर दिक्कत है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आर्टिकल 18 क्लॉज 1, कोई भी ऐसा टाइटल स्टेट नहीं दे सकती। अंग्रेज़ों के ज़माने में जानबूझ के ये टाइटल्स दिए जाते थे। अंग्रेज़ क्या करते थे, एक इनइक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, अपने चमचे बनाने के लिए ये टाइटल्स दिया करते थे। क्लियर? So this is there. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. अब मैं, अगर मेरा नाम शशि थरूर है, मान लो इमेजिनरी नाम है, और मैं लंदन गया और उन्होंने मेरे को टाइटल दे दिया, राइट? तो मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ। अगर इफ आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। टाइटल नहीं ले सकता मैं। यहाँ पे आके बोलूँ देखो मैं लॉर्ड बन गया, वहाँ पे जाके गलत हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज going to create inequality. If you are a subject of India, if you are a citizen of India, then you should not have any allegiance to, any belongingness to a foreign state. Clear? Yes. 18 clause 3, no person. So this is applicable to even aliens, non-citizens. Clear? All right. No person shall, while he holds any office of profit or trust under the state, shall accept without the consent of the president. If somebody is not a citizen of India, but he is acting as an agent, or he is providing any service to the state, or he is holding any office of profit or trust under the state, shall accept एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मतलब कि ये पता किस लिए था, जब अंग्रेज़ हमारी कंट्री को छोड़ के गए थे, व्हेन फॉरेनर्स लेफ्ट आवर कंट्री, देयर वर सम सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, देयर वर सम ICS ऑफिसर्स। दीज ICS ऑफिसर्स, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स, जो कि ब्रिटिश सर्विस के थे, ठीक है, या इंडियन पुलिस ऑफिसर्स, तो दे वर द सिटीजन्स ऑफ ब्रिटेन, बट दे वर holding the offices of profit in India. They were holding the positions of IAS, IPS, right? Indian police, उस टाइम सर्विस नहीं बोला जाता था, ठीक है? तो अगर वो बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी के, सहमति के कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड या कोई ऐसा टाइटल एक्सेप्ट करते हैं तो वो इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा। इसीलिए, समझ में आया? अभी इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑफिस ऑफ ट्रस्ट इंडिया में होल्ड कर रहा है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनिशियली देयर वर सम ऑफिसर्स हु वर रिक्वेस्टेड बाय आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल that they should stay back in India because it will help us in smooth application of the laws made during the British era. All right. Clear? So this is there. Now this part is there. Clear to everyone? अब आते हैं 18 clause 4 पे. No person, again a non-citizen, no person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present, emolument or office of any kind.
अंडर एनी फॉरेन स्टेट। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया while he holds any office of profit under the state shall accept without the consent of president any title. It's just about the title. Here it's about present, emolument or office of any kind from or under any foreign state. Clear? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रिसीव कर सकते, वहाँ पे सिर्फ टाइटल है, डिफरेंस कुछ नहीं है। इसमें अलग से ये भी लिखा जा सकता था ऑफिस वगैरह, ठीक है, लेकिन लिख दिया पूरा डिटेल में, तो क्या कर सकते हैं, डिटेल में लिख दिया तो हम डिटेल में समझा देते हैं। ऑलराइट, इसमें डिग्री विग्री सब कवर्ड है कि किसी को कोई ऑनररी डिग्री लेनी है या कुछ ऐसा, तो भी आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? सिंपल है ना? Yes, if there are some auditors like PricewaterhouseCoopers, ठीक है, PwC या कोई फॉरेन की कंपनी है जो इंडिया में ऑफिस ऑफ ट्रस्ट पे काम कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को ऑडिट करती है, तो उसमें ये किया जा सकता है, उनके ऊपर ये चीज़ लगाई जा सकती है। कहीं ब्रिटिशर्स ने उन्हें बोला कि देखो हम तुम्हें जो है क्वीन का टाइटल दे देते हैं या प्रिंस का टाइटल दे देते हैं, तुम इंडिया के अकाउंट्स में घोटाला कर दो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें चेक करने के लिए। ऑल राइट, क्लियर फॉर एवरीवन? व्हाट डज इट हैव टू डू विद एक्सेप्ट एनी? यहाँ पे टाइटल कहाँ लिखा है? टाइटल नहीं लिखा क्योंकि टाइटल 18 क्लॉज 3 में कवर हो गया। ओके, इट इज नॉट रिटन एनी टाइटल हियर। टाइटल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन आर्टिकल। परमिशन कैसे मिलती है वो तो मुझे भी नहीं पता, मुझे कोई अभी अवार्ड मिला नहीं है, अगली बार जब मिलेगा डीएनए के लिए या कुछ तब मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। मतलब पता है तो आपके काम का नहीं है वो, परमिशन कैसे मिलती है कैसे नहीं, तो वो फॉरेन ऑफिस के फॉरेन जो इंडियन एम्बेसी है उसमें आप एक लेटर लिखोगे कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, मैं ये अवार्ड रिसीव करना चाहता हूँ, तो वहाँ के एम्बेसडर जो होंगे इंडिया के, अगर यूएसए में या यूके में जो एम्बेसडर हैं वो इसको यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास भेजेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे अप्रूव कर देगी तो वो अप्रूव हो जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वी विल अंडरस्टैंड लेटर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स एनी अथॉरिटेटिव ऑफिस फॉर नाउ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? अवार्ड्स गिवन टू पीएम इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। दे वहाँ पे भी परमिशन ली जाती है, फॉर्मली है, अब पीएम से तो क्या ही परमिशन बोलोगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है विद द परमिशन। अब यहाँ पे मना नहीं है, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही कॉन्सेंट है। जो इंडिया के बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं जो यूएसए में यूके में कहीं पे भी रहते हैं, उनको अवार्ड्स मिलते रहते हैं, तो वो फटाफट से मेल करवा लेते हैं। क्लियर? दे सेंड अ मेल टू दी मिनिस्ट्री कि मैं ये अवार्ड एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिनिस्ट्री बोलते कोई दिक्कत नहीं है, बात हो गई। क्लियर? उनको तो मिलते रहते हैं अवार्ड वगैरह। ऑल राइट, सो दिस इज देयर। नाउ वन बाय वन, ए क्लॉज 1 की एक्सप्लेनेशन, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट military or academic distinction on anybody whether a citizen or a foreigner. Example CA, doctor, IAS, MBBS, ये earned हैं, ये पर्सन ने खुद अर्न करे हैं, ठीक है, इससे कोई इनइक्वालिटी नहीं हो रही, इससे तो हम एफिशिएंसी को किसी की एकेडमिक क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बी, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। सी, foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. Clear? consent अगर ले लिया, परमिशन ले ली प्रेसिडेंट से, फिर ठीक है। नाउ फॉरेन स्टेट से नहीं लेना। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट under the state is to accept any present emolument or office। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे
नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस, तो पर्सन में सिटीजन भी कवर्ड हो जाता है, ठीक है। पर्सन इंक्लूड सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, सिंपल सा है। आगे चलते फटाफट। सैलरी टू इंडियन डिप्लोमैट्स रिटायर्ड फ्रॉम यूएन WTO इज अलाउड विद परमिशन। अब यूएन के जो ऑफिशियल्स हैं जब वो रिटायर हो जाते तो उन्हें लाइफ टाइम पेंशन देता है यूनाइटेड नेशंस। शशि थरूर को आज भी पेंशन मिलती होगी, ठीक है, तो वो सब अलाउड है। लेकिन फिर भी जो है इधर उधर वीडियो करते रहते हैं सर, शशि थरूर जो है वो आज भी वीडियो इधर उधर करते रहते, क्लासेस लेते रहते हैं ना, तो वो चीज़ भी है ना, उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। टेक अवेज, आर्टिकल 18 इज एप्लीकेबल इवन ऑन फॉरेनर्स। आर्टिकल 18 अगर प्रीलिम्स में ये आए कि इज इट एप्लीकेबल ऑन फॉरेनर्स, यस। आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। डन। आगे देखते हैं। कोई इस टाइटल को यूज नहीं करेगा। जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो टाइटल्स हैं स्टेट ये टाइटल्स देती है, लेकिन ये ऑनरेरी नहीं है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स हैं ये टाइटल्स, कुछ भी टाइटल इसमें ऑनरेरी टाइटल्स, ऐसे कोई हेरिडिटरी टाइटल्स नहीं है, ऑनरेरी हैं इन द ऑनर ऑफ द सर्विस गिवन बाय देम टू द नेशन, बट दीज आर नॉट हेरिडिटरी। ऐसा नहीं बोलते कि मैं जो है पद्म भूषण का भतीजा हूँ, भांजा हूँ, या पोता हूँ, या दोता हूँ, ये सब नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दिस इज देयर नाउ, clear? So this is there. Now coming here, it protects 6 rights. Article 19 guarantees to all citizens only the 6 rights. These are right to freedom of speech and expression. Article 19 पूरा लिखना है इसको, जब भी लिखोगे आंसर में, clause 1 sub clause A B C D E F was deleted. Right to property was deleted. G, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Clear? अब clause 2 exceptions की बात करता है. This is negatively worded. Nothing in sub clause A, right to freedom of speech and expression, shall affect the operation of any existing law. अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे और prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of number 1 sovereignty and integrity of India, number 2 the security of the state. अगर भारत की sovereignty और अखंडता को preserve करने के लिए, friendly relations with the foreign states, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को प्रिजर्व करने के लिए, और इन रिलेशन टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो आज जो इशू चल रहा है, जो हमने करंट अफेयर्स में आज क्लास में देखा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्लॉज 2 में ये एक्सेप्शन दे रखा है कि मेरे पास या प्रशांत भूषण के पास, प्रशांत भूषण के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। क्लियर? सो व्हाट आर दी अदर एक्सेप्शंस? अगर मैं टीवी चैनल पे बोलूं द नेशन वांट्स टू नो कि चाइना पे इंडिया ने अटैक क्यों नहीं किया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरे में डालूं, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा गलत बोलूं जिससे कि नक्सलवादियों को इंसाइट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं करी जा सकती। फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, अगर मैं अपनी कंट्री के फॉरेन स्टेट्स के साथ में बांग्लादेश के बारे में मैं इल विल जनरेट करने लग जाऊं इंडिया में कि बांग्लादेश में तो ऐसा बोला जाता है लेकिन इंडिया में हम बांग्लादेश को लोन क्यों दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी करूं, तमिलनाडु के तमिलियंस के बारे में अगर मैं गलत बोलने लग जाऊं, क्लियर, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल, कोई भी न्यूज़ एंकर, टीवी न्यूज़ एंकर कुछ भी ऐसा करे तो ये प्रोविजन जिसमें दे रखे हैं। अपने स्वतंत्रता का आप कुछ गलत फ़ायदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी देश की सिक्योरिटी को आप जेपडी में डालें। यू कैनॉट पुट द जेपडी ऑफ इंडिया, यू कैनॉट पुट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इनटू जेपडी, राइट? यस। 2008 का मुंबई टेरर अटैक का लाइव टेलीकास्ट, पठानकोट टेरर अटैक का लाइव टेलीकास्ट, उसमें वो मीडिया में ये दिखाते हैं ना कि ये देखो ताज के बिल्कुल ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, इन अ वे टेररिस्ट को ये बाय डिफ़ॉल्ट, बाय मिस्टेक ये बता बैठा कि देखो हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ ऊपर है, आपको यहाँ गोली चलानी है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर या
इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे घूम रही है, तो ये सारा कुछ गलत है। ऑलराइट, थोड़ा सा एक बार इनको यहीं पे याद करो फटाफट। ट्राई टू मेमोराइज दीज थिंग्स हियर इटसेल्फ। The PPT has already been provided to you and parallelly you can make the notes also. Class notes के लिए नीचे जो feature दिया गया है, right? Soon this feature would be like a notebook or library for you. JV's library is in the making, which will be free for you. Eventually it will be paid for others. All right? Online digital library का ये idea है कि आपको कहीं और नोट्स नहीं बनाने, ये जो नोट्स मेकर है सारा कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसी वेबसाइट पे आप यूज़ कर सकते हो। पॉडकास्ट रहेंगे, उसमें पीडीएफ फाइल्स रहेंगी, जो भी आपके करंट अफेयर्स के नोट्स हैं उनके लिए। आपके लॉगिन पे, डैशबोर्ड पे ये सारा स्टफ जो है विजिबल होगा। So start using it today onwards. Article 19 only talks about freedom of speech and expression. One by one I'll explain all this. Freedom of speech and expression के चलते हमारा right to information यहाँ से derived है. Done? Then right of media to telecast news is not given anywhere in the कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। हाँ, 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीडिया जो है हमारी वजह से टीवी न्यूज़ पे ये न्यूज़ को टेलीकास्ट करता है। इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई राइट टू नो दैट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ फिनोमिना इज देयर, न्यूज़ फिनोमिना जो न्यूज़ का बिजनेस है। दूसरा, किसी को भी ये हक है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये दोनों से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड 19 क्लॉज जी से आके निकलता है न्यूज़ बिजनेस। ओके, राइट टू कैरी आउट, राइट टू रन द बिजनेस न्यूज़, राइट टू रन द न्यूज़ चैनल्स एज अ बिजनेस प्रैक्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम हियर। प्राइवेट न्यूज़ मीडिया होना चाहिए या नहीं, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। क्लियर? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, होना चाहिए क्योंकि प्राइवेट न्यूज़ मीडिया को-ऑप्ट नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट दैट यस, राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। Should private news media, should private sector be allowed in the news business? लिख लिया? Arguments in favor? Yes. Number 1, private sector news channels cannot be co-opted. प्राइवेट सेक्टर न्यूज़ चैनल्स को सरकार दबा नहीं सकती है ना, जैसा कि अभी हो भी रहा है, राइट? प्राइवेट सेक्टर न्यूज़ चैनल्स कैन नॉट बी co-opted. Clear? Second point, it is the right of media to enter the news domain
the right of media to enter the news domain, the right of media to enter the news domain, संतोष चाय बना देना, the right of media to enter the news domain is derived from Article 19 clause 1 सब clause G. ठीक है, सिंपली दो ही पॉइंट हैं, अब इसके बीटिंग अराउंड द बुश कितना भी करते रहो कुछ होगा नहीं. ठीक है, however लिखो इसमें worrisome phenomena is foreign ownership in the news business. ठीक है, channels like Al Jazeera, channels like Al Jazeera और ये सब जो आ रहे हैं तो ये एक गलत फिनोमेना है. ठीक है, तो डिस्पाइट द कंसर्न्स बीइंग रेज्ड अबाउट इट, despite the concerns being raised about it, government increased the FDI. Despite the concerns being raised about it, government increased the FDI in news channels from 26% to 49% through government approval route. ठीक है, however the worrisome phenomena is, क्या बोला था मैंने, however the worrisome phenomena is that despite the concerns being raised about entry of foreign private news channels comma government had raised FDI limit from 26% to 49%. Clear? In the year 2015 आते ही ये काम कर दिया था. Clear? So these news channels are regulated by Ministry of Home Affairs. News channels in India are regulated by Ministry of Information and Broadcasting in association with Ministry of Home Affairs. For Ministry of Information and Broadcasting you will write this way, फटाफट से लिखो MOINB and MHA, Ministry of Home Affairs. फटाफट से लिखो. ठीक है, Rubina, I speak extemporaneously, so I myself do not remember. दो पॉइंट हैं. Point number 2, Article 19 Clause 1 Sub Clause G gives the news channels the right to operate news channels as the business. Since there is no, please add one more line, since there is no bar in the Constitution against news channels being operated by private news media groups. Clear? So this is there.
सो दिस इज देयर. नाउ रोल ऑफ मीडिया के लिए यहाँ पे लिख लेना, ठीक है. रोल ऑफ मीडिया, GS मेंस पेपर 3, रोल ऑफ मीडिया इन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. प्लीज राइट डाउन. थैंक यू सुधांशु. ऑलराइट, तो ये कुछ कुछ डिबेटेबल टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टडी करते हुए चल रहे हैं, ठीक है. अब क्रॉस होल्डिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ न्यूज़ चैनल्स. इसका सेकंड पार्ट बन जाएगा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ न्यूज़ चैनल्स. Number 1, cross holdings. Okay, cross holding. Number 1, cross holdings. Cross holdings means, cross holdings, the term cross holding refers to, the term cross holdings refer to I'm giving you the notes out of those articles only, प्रतीक. ओके, कुछ कुछ आर्टिकल्स मैं शेयर कर दूंगा किसी दिन, फ्री संडे को सारे आर्टिकल्स में शेयर कर दूंगा. अच्छा, जो आप DD न्यूज़ वाला वो आर्टिकल कह रहे थे उसको भी सर्च कर लेता हूँ अभी, राइट. उसमें से मैंने बता दिया, वो जो क्वेश्चन था उसके पॉइंट्स अभी लिखवाने जा रहा हूँ, लिख लो फटाफट. वेयर वाज आई? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. क्रॉस होल्डिंग एज अ टर्म रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ न्यूज़ चैनल्स, फिनोमिना ऑफ प्राइवेट कंपनीज, owning the shares of TV news channels. ठीक है, ये ड्रॉ कर लो. प्राइवेट कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स owning the stakes in news channels. Clear? So as per the administrative staff, as per the study commissioned by, as per full stop के बाद, as per the study commissioned by, as per the study commissioned by Administrative Staff College of India at the behest of Information and Broadcasting Ministry, as per the study conducted by Administrative Staff College of India at the behest of I&B Ministry, Information and Broadcasting Ministry, (54 companies, 54 private companies invested across print, broadcasting, and news media.
ठीक है. Not only this, full stop. Not only this, the recent scam चिदम्बरम का कौन सा स्कैम था? INX media case. Okay, not only this, the arrest of the senior functionaries of the government in the INX media case. So this is how you are camouflaging the name of minister. Not only this, the arrest of, not only this, comma, the arrest of senior government functionaries in INX media case as recently as 2019 highlight the importance of lobbying, business lobbying, highlight the importance of business lobbying through news media groups. ठीक है, एक प्राइवेट चैनल पे रिलायंस, मान लो रिलायंस एक स्टोरी चलवाता है कि पेट्रोलियम में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, उससे पब्लिक ओपिनियन चेंज होती है, पब्लिक ओपिनियन अफेक्ट होती है, पब्लिक ओपिनियन को ट्विस्ट किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, राइट. टीवी न्यूज़ चैनल्स, प्लीज राइट डाउन, टीवी न्यूज़ चैनल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in shaping the public opinion. That is why this should be this space of democratic this space of democracy should be regulated properly, right. Especially in the light of scams like Rupert Murdoch scam in Rupert Murdoch scam in Britain. ठीक है, Rupert Murdoch scam in Britain. अब need for independent state broadcaster. Clear?
बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। प्रसार भारती जो है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे अभी। सो इंडिपेंडेंट स्टेट ब्रॉडकास्टर का मतलब क्या होता है? जब स्टेट का ब्रॉडकास्टर गवर्नमेंट से अलग हो, राइट? मीडिया इज कॉल्ड एज द फोर्थ पिलर। मीडिया इज कॉल्ड एज द फोर्थ पिलर। देखो गाइस, कर लेना खुद कोऑपरेशन से, टेलीग्राम ग्रुप है, कभी कोई स्टूडेंट शेयर कर देगा, कभी कोई स्टूडेंट कर देगा, ठीक है? ऐसे थोड़ा मिल बांट के काम चला लेना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है प्रसार भारती। प्रसार भारती इज द होल्डिंग कंपनी फॉर डीडी न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब प्रसार भारती के अंडर आते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट ब्रॉडकास्टर की न्यूज़ की ज़रूरत और भी ज़्यादा महसूस होती है जब हम जो पॉइंट्स हमने लिखे, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, क्लियर? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन में ये लिख लो, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंट्री ऑफ प्राइवेट न्यूज मीडिया। पहले एक बार लिख लो, इसको थोड़ा सा ऐड कर लो, एक और पॉइंट है, द राइट ऑफ सिटीजन, द राइट ऑफ सिटीजन, द राइट ऑफ सिटीजन्स टू हैव एक्सेस टू क्लीन एंड प्योर न्यूज एंड अनस्पॉन्सर्ड न्यूज, नॉन स्पॉन्सर्ड न्यूज, ठीक है? अनपेड फॉर न्यूज, नॉट पेड फॉर न्यूज। द राइट ऑफ माई राइट एज अ सिटीजन टू हैव एक्सेस टू प्योर न्यूज आर्टिकल्स, प्योर न्यूज, डिस्टिल क्लियर न्यूज is more important than the right of a few business groups to run their business। समझ में आया? अगर हम थियोरी लगाएं, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमम लॉस, तो मैक्सिमम गुड वुड बेटर बी सर्व्ड, मैक्सिमम गुड वुड बी सर्व्ड व्हेन न्यूज चैनल्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पुल्स एंड प्रेशर्स। कमर्शियल गेन्स के लिए हम नेशनल इंटरेस्ट को, फोर्थ पिलर को बेच नहीं सकते। फोर्थ पिलर, फोर्थ एस्टेट, मीडिया कैन नॉट बी allowed to be sold or purchased simply because of Article 19 clause 1 subclause G, because Supreme Court itself has said कि all these things have to be read harmoniously। और Supreme Court ने ये कहा था कि information is the oxygen, so they are making the news media, some of these news channels are making oxygen as carbon dioxide, ठीक है? For the sake of larger good, for the citizenry of this country to be truly awakened, सिटीजनरी को, नागरिकों को पूरी तरह से जागरूक करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड टू अनशैकल द मीडिया फ्रॉम द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टीआरपीज। क्लियर? अब ठीक है, समझ में आया? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन और एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द न्यूज मीडिया। क्लियर? अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ arguments in favor of independent state broadcaster। all right, I'll share some articles also। तो कुछ जो कमेटीज हैं उनके बारे में भी लिखेंगे फटाफट से।
Just 1 minute, guys. Just 1 minute. प्रसार भारती time and again, पहले लिख लो, time and again controversies have erupted, time and again controversies have erupted around the issue of autonomy of the government broadcaster. That is Prasar Bharati. Right? So that's why, like in other countries, following the international practice, following the international trend in some of the developed countries, we should have an independent state broadcaster in India with security of, with its members having security of tenure, with its members having security of tenure. Time and again, मैंने क्या बोला, time and again the controversies have erupted around the issue of the autonomy of government broadcaster, that is Prasar Bharati. So following the full stop, so following the international trend, we should have independent state broadcaster. With its members or office bearers, with its members or office bearers with its members or office bearers having security of tenure. ये उसके फीचर्स हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए एंड फिस्कल और फिनेंशियल अटोनॉमी. सेकंड, एंड फिनेंशियल अटोनॉमी. सेकंड, फिनेंशियल अटोनॉमी. थर्ड, ऑपरेशनल अटोनॉमी. थर्ड, ऑपरेशनल अटोनॉमी. क्लियर? In this regard, the government had appointed an expert committee. Next line से शुरू कर लेना. In this regard, the government had appointed an expert committee under the chairperson सैम पिट्रोडा. राइट, प्रीवियस गवर्नमेंट ने लगाई थी 2014 में. द कमेटी गेव इट्स रिपोर्ट इन 2014. ठीक है, थोड़ा सा लिख लो, पुरानी है कमेटी बट फिर भी. कमेटी अंडर सैम पिट्रोडा, एक्सपर्ट कमेटी अंडर सैम पिट्रोडा फॉर अटोनॉमी, फॉर ग्रांटिंग अटोनॉमी टू प्रसार भारती एंड फॉर अमेंडिंग प्रसार भारती एक्ट 1990. ठीक है. In this regard, the government had appointed a committee, an expert committee under the chairpersonship of Sam Pitroda, PITRODA.
RODA, ठीक है, सैम पिट्रोडा, फॉर गिविंग ऑटोनॉमी टू प्रसार भारती एंड फॉर अमेंडिंग प्रसार भारती एक्ट 1990। तुम लोग तेज लिखा करो, मेंस भी तो लिखना है फटाफट। नहीं, कोई नोट नहीं शेयर करेगा, फटाफट से लिखा करो, अपनी कलम चलाया करो, नहीं तो ले आओ मोर का पंख या कबूतर का कहीं से उठा के, फटाफट से लिखा करो, तभी मेंस में कलम चलाओगे, वहाँ पे जाके थोड़ी ना कुछ ऐसे चलेगा, प्लीज़ शेयर दी नोट्स। कल को कहोगे लाल बत्ती आधी आधी कर लेते हैं, लिखो फटाफट। नाउ salient recommendations of committee, salient recommendations of committee, number 1 लिख देता हूं मैं साथ साथ। प्रसार भारती should be allowed to use social media extensively, ठीक है, सोशल मीडिया। दूसरा, प्रसार भारती शुड बी अलाउड इतनी आराम से तो बोल रहा हूं मैं, आओ कभी बाजाराम तुम्हें दिखाते कैसे लिखवाते हैं वहां पे। ओके, कमेटी कॉल्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ थर्ड आर्म, कमेटी हैड कॉल्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ थर्ड आर्म, तीसरी बाजू, नेम्ड प्रसार भारती कनेक्ट। साकेत आज बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? प्रसार भारती कनेक्ट, प्रसार भारती कनेक्ट। जस्ट 1 मिनट रुबीना, आपको टेलीग्राम पे ही, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, टेलीग्राम पे ही मैसेज भेजना है कि प्लीज़ ऐड मी। आई एम फॉर नाउ फॉरवर्डिंग योर दिस कॉन्टैक्ट नंबर, बट दिस इज समथिंग यू शुड हैव डन योरसेल्फ। आपकी लाचारियत को देखते हुए मैं ये कर रहा हूँ वैसे। Okay, so this is there now. Prasar Bharati Connect, CONNECT, Prasar Bharati Connect. This will be the third arm of the public service broadcaster, independent of Doordarshan and All India Radio, with a mandate to manage various social media initiatives. प्रसार भारती कनेक्ट सेपरेट होगा। अभी प्रसार भारती के अंदर 2 आते हैं आर्म्स में, ठीक है। प्रसार भारती में अभी कौन कौन आता है? ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से अलग प्रसार भारती कनेक्ट बनाया जाएगा, जो कि थर्ड आर्म होगा इसका, प्रसार भारती का। यहाँ पे डीडी आ जाता है, दूरदर्शन, ठीक है। तीसरी आर्म होगी प्रसार भारती कनेक्ट, PBC, फॉर मैनेजिंग सोशल मीडिया। क्लियर? सोशल मीडिया। नाउ for funding mechanism, third funding mechanism should be there, ठीक है। फंडिंग मैकेनिज्म में क्या किया जाए कि टीआरपी से हटके कोई फंडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टीआरपी जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट वाला फिनोमिना है वो सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फंडिंग मैकेनिज्म के लिए और फाइनेंशियल नीड्स के लिए कमेटी ने ये कहा कि जो वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ लैंड हैं फॉर फंडिंग मैकेनिज्म, एक फंडिंग मैकेनिज्म मिनिस्ट्री को डिवाइस किया जाए, जिसके लिए बोला गया एक अलग से कमेटी लगाई जाए, ठीक है। कमेटी पे कमेटी, ये जो इंडिया में कल्चर है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि जो लैंड है उसे मोनेटाइज किया जाए प्रसार भारती की ऑटोनॉमी के लिए। तो ये सारी चीज़ें कही गई कि कमेटी को जो है थोड़ा सा ये काम करना होगा, मतलब प्रसार भारती की ऑटोनॉमी के लिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। क्लियर?
तो अब नई सरकार आ गई तो उसके बाद ये कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस का हुआ नहीं, बट आपको अब थोड़े पॉइंट्स पता लग गए। क्लियर क्लियर। डन। अब आगे चलते हैं 19 क्लॉज 1। प्रसार भारती का इशू अभी लाइमलाइट में नहीं है, वो जब मोदी सरकार कुछ इंटरफेरेंस करती है तभी न्यूज़ में आता है। अभी के लिए हमने इतने पॉइंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। अगर ये न्यूज़ में आता है तो वी विल बी डीलिंग विद दिस इन दी current affairs course as well, and you will be getting a handout, don't worry. Let's spend more time on the things which are important. ये पता होना ज़रूरी था फिर भी। अब clause 2 नथिंग इन दी, अब ये क्या है, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिया सारा कुछ, कि जो कुछ आपके हक मिले हुए हैं आपको, आप उन हकों का हवाला देते हुए ये नहीं है कि सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरे में डालोगे। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और ये सब को खतरे में आप नहीं डाल सकते। इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत किसी बुक में अगर कुछ ऐसा ऑफेंसिव लिखा जाता है, या कोई MF हुसैन कोई ऐसी पेंटिंग्स बना देते हैं इंडियन डेटीज़ की जिसमें कि उन्हें न्यूड पेंटिंग्स वगैरह में दर्शाया जाता है, तो उसके खिलाफ FIR हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहता है। पद्मावत मूवी, पद्मावती और ये सब के खिलाफ भी चीज़ें रहती हैं। आगे देखोगे फटाफट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा एनालिटिकल साइड पे। यहाँ पे क्लॉज 3 रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू असेंबल पीसेबली। क्लॉज 2 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्लॉज 1 सब क्लॉज A की, ठीक है। क्लॉज 3 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्लॉज 1 सब क्लॉज B, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। यहाँ पे 2 ग्राउंड्स हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, ठीक है। वहाँ पे कितने ग्राउंड्स हैं? 4 ग्राउंड्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 ग्राउंड्स हैं। क्या? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस कैन बी। अब ऐसी यूनियन नहीं कि आप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम बना के बैठ जाओ और टेररिस्ट एक्टिविटीज करने लगो, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइज्म, पब्लिक ऑर्डर को खराब करेंगी ये, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर को कोई भी चीज़ जो आघात पहुंचाएगी, जो अफेक्ट करेगी, उसे बैन किया जा सकता है। मोरालिटी, अब कोई ऐसा नहीं है कि दारू बेचने बैठ गया, ठीक है, या फिर हुक ट्रेजेडी या स्पूरियस लिकर या कोई ड्रग्स वगैरह बेचने की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्लियर? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, दीज आर दी 2 ग्राउंड्स, ठीक है, जिसपे की फॉर्म एसोसिएशंस। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 3 सॉरी ये कहता है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे। 2 हो गई ना ये, नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ पे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर जरूरी है। इसीलिए जब कभी कोई बकरीद या कोई रथ यात्रा निकलती है तो पुलिस को बताना जरूरी होता है। एनी असेंबली, अगर कोई भी असेंबली ऐसी होती है जिसमें कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस को नहीं बताया जाता, तो उसको पुलिस क्या करती है? खदेड़ देती है, या फिर पुलिस दे डू दी लाठी चार्ज और ये सब, ठीक है। विदाउट आर्म्स, बिना किसी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के। इस राइट को इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए और पब्लिक ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। क्लॉज 4 किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C के तहत जो राइट मिला गया है, दिया गया है, उसकी बात कर रहा है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। एसोसिएशंस और यूनियंस होनी चाहिए, वो मॉरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लू फिल्म का जो है दुकान खोल के बैठ जाए, गलत हो जाएगा, ठीक है। JNU प्रोटेस्ट की बात है, पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करने की। सॉवरेनिटी, इस देश को चाहिए आज़ादी, ये सब नहीं कर सकते, वरना फिर IPC में ऐसे सेक्शंस हैं कि गिरफ्तार किया जा सकता है। आसाराम यदि कोई इमोरल काम करते हैं तो फिर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। मोरालिटी मीन्स सेक्सुअल ऑफेंसेस विद चिल्ड्रन, राम रहीम कुछ ऐसा करते हैं तो भेजा जा सकता है। एसोसिएशंस रिलीजियस हों या पॉलिटिकल हों, मॉरल काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो लॉ है इसको रेगुलेट करने के लिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम टू मूव फ्रीली, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम टू मूव फ्रीली, एक तो जम्मू एंड कश्मीर वाला था, अब वो चला गया, ठीक है। ठीक है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक की फ्रीडम टू मूव फ्रीली, अगर कहीं पे आतंकवादी गतिविधि हो रही है या कहीं पे ऐसा रश है, जैसे कि अभी कोरोना टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे
सोशल डिस्टेंसिंग की, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक लगाई जा सकती हैं, याद रहेगा। दिस क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट द राइट, restrictions against the right given under article 19 clause 1 sub clause D. Clear? Yes. Scheduled tribes, scheduled tribes दे रखे हैं, scheduled caste areas नहीं दे रखे, ठीक है। scheduled tribes area, tribal areas में वहाँ क्या है कि 2012 में कुछ होटल ग्रुप्स में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा या इन्होंने क्या किया, ट्राइबल एरियाज़ में अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स ओपन कर दिए और ये बोला कि चलो आओ तुम्हें जो है ट्राइबल लोगों को दिखा के लाते हैं। सफारी इन दी ट्राइबल एरियाज़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और अदर एरियाज़ में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, एज पर क्लॉज 5 स्टेट हैज़ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। जहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, ट्राइबल लोगों को नोट फेंक के अंग्रेज़ लोग या जो फॉरेनर्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, वो उनको बोलते थे हमारे पास आओ, उनको देखने के लिए, उनका लाइफस्टाइल देखने के लिए ये सब किया जाता था। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं। लास्ट वन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई झोला छापो वो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। ऐसे तो वेटरिनरी डॉक्टर्स भी ये बोलेंगे कि हम MBBS हैं। ये सारी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कोई पर्सन जो लीगली क्वालिफाइड नहीं है वो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्लियर? तो दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन अगेंस्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G। स्कूल्स में ये बोला कि आपके राइट टू डू बिजनेस तो है, लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व कीजिए। कितने लोग देख रहे हो, हाजिरी लगाओ, सो गए हो आज फटाफट, पता लगता है पेन शार्पन करने चले गए हो कहीं, फटाफट हाजिरी लगाओ। ऑल राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर, अब जैसे इतने सारे लोग टीचर बने हुए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि ऐसे ही कोई भी जो है टीचर है वो टीचर बन गया, तो ये सारी चीज़ें स्टेट कर सकता है। लेकिन अभी क्या है, अभी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर्स की आपूर्ति है तो काम चल रहा है। वैसे ही डॉक्टर्स की आपूर्ति है तो स्टेट खुद ही बोलता है कि आशा से ही सिर्फ आशा है, उम्मीद है। समझ में आया? अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक प्रपोजल आया, उसमें ये बोला गया कि जो अभी आयुर्वेद सिद्ध यूनानी वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको भी MBBS के बराबर एक छोटा मोटा कोर्स पास करके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, उनको भी इक्वल स्टेटस दे दिया जाएगा डॉक्टर वाला। नाउ सो दिस इज देयर। नाउ कमिंग हियर, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग द मोनोपोली ऑफ स्टेट ओरिजिनली। आर्टिकल 19 कंटेन्ड 7 राइट्स, ओरिजिनली आर्टिकल 19। तो मोनोपोली ऑफ स्टेट, जैसे कि अभी कोई बोले कि मेरे को न्यूक्लियर हाथा खोलना है, ठीक है, न्यूक्लियर काम करना है या कुछ भी टेक्नोलॉजी में, अगर स्टेट चाहे तो अपनी मोनोपोली बरकरार रख सकता है, ठीक है। मोनोपोली स्टेट कहीं पे चाहे तो मोनोपोलाइज कर सकता है कि दैट ओनली स्टेट कॉर्पोरेशंस विल बी देयर, और अगर स्टेट चाहे तो प्राइवेट मोनोपोलीज भी क्रिएट कर सकता है। बट राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी as per your sweet will was deleted by 44th Constitutional Amendment Act. Now the right to property is a mere legal right under Article 300A. Clear? Salient points to note:
ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव राइट्स एज दे आर ऑल पॉजिटिवली वर्डेड. 19 क्लॉज 1 से लेकर 19 clause 1A to G. All of them are positively worded. These 6 rights are protected against only state action. Only state action. Please be clear about this. Not the private action. अगर मैंने आपके प्रोफेशन को कब्जा कर लिया या बंद करवा दिया या किसी गुंडे ने बंद करवा दिया तो नहीं है प्रोटेक्शन. ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे. एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए आईपीसी सीआरपीसी है, उसके लिए नहीं. राइट. मोर ओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी बट नॉट टू फॉरेनर्स. फॉरेनर्स के पास ये राइट्स नहीं है. जैसे इंडियन कंपनी में कोई स्कैम होता है, जब सत्यम कंपनी में स्कैम हुआ था, सत्यम जब जूठम हो गई थी इन अदर वर्ड्स, तब फॉरेन शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे आके राइट टू डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अंडर द फंडामेंटल राइट्स. ओके. और लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज और कॉरपोरेशन, ये राइट जो है लीगल पर्सन्स को, कॉरपोरेशंस या कंपनीज, उनकी अपनी कोई नेचुरल आइडेंटिटी नहीं होती. कंपनी की कोई नेचुरल आइडेंटिटी थोड़ी है कि मतलब उसके सांस, नाक, कान, धड़कन, दिल की चलती है, नहीं चलती. ठीक है, इसीलिए कंपनीज को ये राइट्स अवेलेबल नहीं है, फॉरेनर्स को ये राइट अवेलेबल नहीं है. 19 आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Article 15, 16, 19, 29 and 30 are available only to citizens. अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मूवीज में what do you understand by the concept of freedom of speech and expression? Does it cover hate speech also? Why do films in India stand on a different plane? Slightly different plane from other forms of expression. Other forms of expression में क्या होता है? बुक पब्लिश कर देते हो, बाद में रेगुलेट होती रहेगी. ठीक है, एम.एफ. हुसैन ने मूर्ति बना, कुछ पेंटिंग बना दी जिसमें कि इंडियन डेटीज को, इंडियन देवी देवताओं को गलत, मतलब न्यूड पेंटिंग्स थी, नेकेड. ठीक है, बॉडीली नेकेड पेंटिंग्स, वो बना दी. और किसी ने कुछ और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एडिटोरियल लिख दिया, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, टीवी न्यूज़ मीडिया, उसमें भी नेशन वांट्स टू नो कुछ भी बोल जाता है. ठीक है, वो भी हो गया. लेकिन फिल्म्स को सेंसर क्यों किया जाता है? इसका मतलब ये था, फिल्म्स की प्री सेंसरशिप क्यों होती है? समझ में आया? फिल्म्स की प्री सेंसरशिप क्यों होती है, ये पूछा जा रहा है. बताओ क्यों होती है? Why do films in India stand on a slightly different plane when it comes to freedom of speech and expression? AIB roast, ये सब चीज़ें क्यों होता है ऐसा? बताओ, लगाओ दिमाग. This question was asked by UPSC after the controversy around Padmavat movie. Padmavat थी या नहीं? That movie was the one by हसन, कमल हसन की जो मूवी आई थी साउथ में. ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था. प्रियंका, यू आर राइट, बट दैट इज द साइड इफेक्ट. ठीक है, अभी उस पर भी बात करेंगे. हायर इम्पैक्ट ऑफ ऑडियो विजुअल इफेक्ट. यस, यू आर पार्टली राइट. पार्ट ऑफ द रीजन इज दिस कि हायर ऑडियो विजुअल, तो दोनों सेंसरी ऑर्गन्स कैप्चर कर लेता है ना. उसके बाद मूवीज आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम थ्रू आउट द कंट्री. फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो. ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो इफेक्ट. अब इसका इफेक्ट ये होता है, गदर मूवी देखने के बाद हर कोई जो है नल के उखाड़ने लग जाता है. ठीक है, और दिस द अदर मूवी, द रिसेंट वन, खैर छोड़ो, उसको मूवी को देखने के बाद सभी आशिक हो गए थे ना, तो दिल टूटे आशिक टाइप. तो वो सारी जो मूवीज़ का फिनोमिना है, अभी 2019 की ही मूवी है ये, शाहिद कपूर की मूवी है. अब देखो, अभी यहाँ पे आएंगे नाम फटाफट. क्लियर? ये एक और डिबेटेबल एरिया है.
let me recollect the points. Kabir Singh is the movie I am talking about. Very nice. Sanjeet, yes. So यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जानबूझ के कुछ फिल्म डायरेक्टर्स, खासकर कुछ डायरेक्टर्स की मूवीज़ में कुछ ऐसा होता है, जस्ट टू गेन द नेगेटिव पब्लिसिटी दे डू दिस, दैट दे ऐड सम ऑब्जेक्शनेबल सीन्स. अनुराग कश्यप की मूवीज़ में मिल जाएंगे उड़ता पंजाब में, या इमरान हाशमी की मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन मिल जाएंगे ताकि मूवी बैन होगी और उसके बाद अपने आप पब्लिसिटी मिल जाएगी. दूसरी बड़ी चीज़ है, डू यू थिंक दैट इट इज़ रिक्वायर्ड इन इंडिया इन द टाइम्स ऑफ लाइव यूट्यूब सेशंस और फेसबुक सेशंस, डू यू थिंक दैट सेंसरशिप एक्ट, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1950s का जो एक्ट है 1955 का, डज इट हैव एनी रेलेवेंस in the light of live, in the light of emerging social media technologies, in the light of emerging social media, you can say simply, in the light of 24/7 rebel rousing news media channels. क्या कोई अस्तित्व बचता है इस एक्ट का? नहीं बचता, बट एक प्रथा चलती हुई आ रही है, ब्रिटिशर्स के टाइम से तो चल रहा है. ये मूवीज़ के केस में ये माना जाता है कि अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा वो भी मूवीज़ को समझ सकता है, ठीक है. लेकिन अब हमारी जनता जो है पढ़ती लिखती जा रही है, तो जो लोग निर्भया रेप केस के बाद या जन लोकपाल आंदोलन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है. एंड दे वर अराउज्ड मोस्टली बाय, नॉट बाय द मूवीज़, दे वर up in the arms after watching the news channels or reading the news articles. आधे लोग तो यूपीएससी के ही थे, मैं नहीं गया था, ठीक है. प्लीज़ बी केयरफुल. आई वॉज हेल इन टू माई प्रिपरेशन बिकॉज आई वॉज जस्ट टेकिंग अ फीलिंग कि हाँ मैं इनको रेगुलेट करूँगा बाद में, ठीक है, जब कभी कुछ ऐसा होगा तो इसलिए लोग पढ़े लिखे भी अब पार्टिसिपेट करने लग रहे हैं. पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर. सो मूवीज डू नॉट, इन द टाइम्स ऑफ नेटफ्लिक्स, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, यस, इन द लाइट ऑफ नेटफ्लिक्स और बाकी की Z5 या जो भी बहुत सारी चीज़ें आ गई अब, ठीक है. नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, फिर यूट्यूब के बाद अमेजन प्राइम है. तो इन सारे फिनोमिना में लाइव न्यूज़ चैनल्स की एज में क्या रेलेवेंस बचती है कि इसको आप ये कर रहे हो. तो अगर आप इसको रखते हो तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी मूवी, in order to gain some mileage, every director adds some objectionable scenes, ठीक है. तो arguments against ये एक चीज़ है, ठीक है. एंड ये जो लेबलिंग का काम है, मूवीज़ को लेबल किया जाता है, एडल्ट मूवी है, अंडर 18 है, 18+ है, उसमें भी कोई रेलेवेंस नहीं बचती अब, ठीक है. 16 कैटेगरी एक और डाल दी, फ़ायदा नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे पहले ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, जो कि इंटरनेट पे सारा कुछ चल रहा है ना. तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, राइट. नाउ ये इसके कॉन्टेक्स्ट में आप खुद से इसके रिफाइंड पॉइंट्स लिखोगे. आई वॉन्ट यू टू राइट द पॉइंट्स, आई कैन डिक्टेट दीज पॉइंट्स. वेब सीरीज हैं, सारा कुछ है, राइट. देन discuss section 66A of IT Act with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution. This question was asked in 2013. क्या हुआ था? What had happened after the death of the great leader, the demise of the great leader Bal Thackeray? Two of the girls, they were quite perturbed with their life was thrown out of gear because of the Bandh that Shiv Sena had announced in Maharashtra, and they had posted a post on their wall which read something like, ये क्या मतलब हुआ कि अगर एक लीडर मर गया है तो उसके चलते आप पूरी स्टेट को रैंसैक कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू होल्ड द एंटायर स्टेट टू रैंसम बाय आस्किंग फॉर द बंद? Our lives are thrown out of gear, we have to earn our livelihood. तो पुलिस came and knocked at their door. तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया. तो इसको सिंघल केस कहा जाता है, ठीक है. तो मिस सिंघल द लॉयर हैड फाइल्ड अ केस अ PIL की सेक्शन 66A ऑफ IT. ये क्या है? सोशल मीडिया में सेंसरशिप है. सोशल मीडिया में अगर कोई भी ऐसी ऑफेंसिव पोस्ट को पोस्ट कर रहा है, कुछ भी ऐसा लिख रहा है, तो उसको अरेस्ट ना किया जाए. दिस इज एन असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन दी डिजिटल सोशल मीडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इंटरनेट, while giving the judgment on this issue, Supreme Court said section 66A is
basically is eating into the vitals of Article 19 Clause 1 Subclause A. Internet is the marketplace of ideas. Let the ideas float freely. And it is nobody's private domain. If you are happy with that idea or post, you can like it. If you are not, you can ignore it and move on. You can dislike it, right? So it's not that everybody should be very pricky about it or very nitpicky about whatever is happening, and police has no right. तो सेक्शन 66A को ये कहा गया कि इसमें जो ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट हैं कि पब्लिक ऑर्डर को या किसी समुदाय को आपने अफेक्ट कर दिया सेक्शन 66 के चलते, ए ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के चलते, कि होम सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट कैन इशू द ऑर्डर्स और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैन इशू द ऑर्डर्स फॉर अरेस्ट ऑफ द गर्ल्स और एनीबडी हु पोस्ट समथिंग ऑफेंसिव, कि उससे जनता भड़क जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रॉड ग्राउंड्स हैं इसमें अरेस्ट के, इसलिए ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इसको रिपील कर दिया गया। अब हमें इसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर देयर इन द स्टैट्यूट बुक। क्लियर? नाउ प्रोबेबल टॉपिक्स: इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई, इंस्टीट्यूशनल malaise. RTI is derived right under Article 19 Clause 1 Subclause A, Fundamental Rights. ठीक है, it is a derived fundamental right. But is RTI getting effectively implemented? This is the 15th year of RTI Act being passed. So you can very well expect a question on this thing कि RTI को इतने साल हो गए, क्या क्या रोड ब्लॉक्स RTI में देखे जा रहे हैं? राइट डाउन। Please write down point number 1. Problems observed in the effective functioning of RTI Act. Non-timely filling up of vacancies. Non-timely filling up of vacancies. The position of CIC, Central Information Commissioner, was kept vacant. It was kept vacant for 9 long months. 9 long months. Thereby leading to an increase in the backlog of cases. Thereby leading to an increase in the backlog of RTI petitions. Point number 1 का solution. There should be a clause. Solution. Point number 1, solution to point number 1. There should be added a clause. We should add a clause by amending the RTI Act that to the effect that a clause to the RTI Act should be added to the effect that the process of appointment of the new chief or any other RTI commissioner, to the effect that the process of appointment of chief information commissioner or any other information commissioner should begin before the retirement of the incumbent.
समझ में आया? देखो, सेरेमोनियल ऑफिस है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के सेरेमोनियल ऑफिस के लिए एक क्लॉज रखा गया है। क्लॉज ये कहता है कि प्रेसिडेंट को चुनने का काम प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट से 6 महीने पहले शुरू हो जाए। हालांकि वो एक नॉमिनल हेड हैं, नो डाउट ही इज़ द हाईएस्ट फंक्शनरी इन द कंट्री, बट हैं तो वो नॉमिनल। जो ऑपरेशनल फंक्शनरीज हैं, जो सही में काम करने वाले फंक्शनरीज हैं, उनके यहाँ पे आप वैकेंसी कर देते हो, वैकेंसी अलाउ रहने देते हो। देयर शैल बी नो इंटररेग्नम इन दी ऑफिसेज विच डील विद द मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है कि नहीं? ऐसे मैटर्स में क्यों वैकेंसी भाई? और 9 महीने में कौन सा ऐसा बच्चा पैदा कर दिया जो नया आरटीआई कमिश्नर ढूंढ के लाए? दिस हैपेंड इन द एज ऑफ सतयुग। आफ्टर 2014 द एरा ऑफ सतयुग स्टार्टेड इन इंडिया। रामायण का अलग होगा, गीता का अलग होगा, लेकिन इंडिया में 2014 से एक नई शुरुआत हुई। समझ में आया ट्रांसपेरेंसी की? दूसरा द एक्सपेंडिचर ऑफ, point number 2, problem number 2, the expenditure of Central Information Commission is not, the expenditure of Central Information Commission, मैंने मोबाइल में कुछ पॉइंट्स लिखे थे राज्यसभा के, कुछ उससे नोट्स में, जस्ट ढूंढने दो एक बार। the expenditure of Central Information Commission is not charged on the Consolidated Fund of India. ठीक है, एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं है आरटीआई को डीओपीटी से। द एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन Consolidated Fund of India. Thereby leading to the dependency of Central Information Commission on the Department of Personnel and Training, on the Department of Personnel and Training for financing requirements. Clear? Solution: the budget of RTI, the budget of CIC, the expenditure of CIC should be charged upon the Consolidated Fund of India. ठीक है, तो इस पे एक और राइटअप आ जाएगा जो 2019 का हमारा एक्ट था। 2019 में एक ड्रास्टिक अमेंडमेंट लाया गया इसमें, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड यू दी हैंड आउट और वी विल स्टडी दिस इन दी करंट अफेयर्स कोर्स एनी विच वेज। इसका एक ग्लिम्स दे दिया। 2019 के एक्ट में सेक्शन 13, 16 और 27 को अमेंड किया गया है। दी टेन्योर ऑफ, थर्ड पॉइंट लिखना है तो लिख लो, द टेन्योर ऑफ CIC, Central Information Commissioners. Third point, the tenure of Central Information Commissioners and State Information Commissioners can now be changed by the government. Clear? Yes, Rubina, you are right. Impostering activities will come under clause
5 of Article 19. Clear? Clause 6. This one. ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यहाँ पे आर्टिकल 19 से रिलेटेड. शुड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बी मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अबाउट इंडिपेंडेंस. सेंसरशिप ऑफ मूवीज़. अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एसए के लिए. यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड प्रीसीड फर्स्ट. पहले क्या होना चाहिए. अब आप पहले की कोई मूवीज़ देखते हो, ठीक है, कुछ कुछ मूवीज़ ऐसे आती है जैसे पीके या फिर ओ माई गॉड, परेश रावल और ये सब, ठीक है, आमिर खान. तो मूवीज विच टीच अ साइंटिफिक टेम्पर, जैसे कि पैडमैन, ठीक है. अब अगर ऐसी मूवीज जो ग्राउंड ब्रेकिंग होती हैं कभी कभी, या फिर जो सरकार की पोल खोलती हैं, उड़ता पंजाब, जिसमें कि ड्रग पेडलिंग को, मिनिस्टर्स आर हैंड इन ग्लव इन ड्रग पेडलिंग, वो सब चीज़ों को दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें. थर्ड पॉइंट है टेन्योर. टेन्योर मतलब द टेन्योर, पहले क्या था, फिक्स टेन्योर था 5 ईयर्स का. अब उस टेन्योर को सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कट कर सकती है, ठीक है. ट्राइब्यूनल्स के टेन्योर को और सीआईसी के टेन्योर को फिक्स टेन्योर नहीं रखा गया. अगर सीआईसी अच्छा लगेगा, अगर सरकार के कहने पे आरटीआई में जजमेंट देगा, ऑर्डर्स देगा, तो ठीक है. यस, आफ्टर द रीसेंट अमेंडमेंट इन 2019 दिस हैज बीन डन. क्लियर. अब यहाँ पे क्या है कि अंडर द रूब्रिक ऑफ सेंसरशिप, अंडर द गार्ब ऑफ सेंसरशिप, यू आर नॉट अलाउइंग मूवीज टू परफॉर्म देयर रोल. आजकल वो मूवीज़ हैं जो कन्वेंशनल हैं, जैसे कि फालतू की जो मूवीज़ हैं वो तो अप्रूव हो जाती हैं. अब जो मूवीज़ में कुछ एसेंस होता है उसको सरकार रोक देती है, अनकन्वेंशनल मूवीज़ को, ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको रोकने की ज़रूरत है. मूवीज़ विच टीच अ साइंटिफिक टेम्पर और सिटीजन्स शुड फर्स्ट बी सेंसिटाइज्ड बिफोर वॉचिंग द मूवीज़. अब बच्चों की बात करो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है. पेरेंट्स के साथ में बच्चे जाएगा, अगर कोई, आजकल के बच्चे वैसे बहुत छाने हैं, ठीक है, तो आपके और मेरे से बहुत आगे होंगे. तो एग्जाम्पल यहाँ पे साकेत, वेयर आर यू साकेत नाउ, सो दिस इज देयर. अब ऐसे केस में क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ में अगर वो बच्चा जाएगा तो शायद पेरेंट्स उसको सुपरविजन में एज अ फ्रेंड चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक है. उड़ता पंजाब जैसी मूवीज़ में अगर ड्रग पेडलिंग हो रही है तो उसको खुलासा करने वाले, उसको जो रिवील करने वाली मूवीज़ हैं, उड़ता पंजाब या कोई भी और मूवी, उस पर बैन लगा दिया जाता है. तो वो चीज़ लाइमलाइट में आएगी कैसे, राइट. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम. क्लियर. नाउ ये, इसको आपको थोड़ा सा देखना है, खुद से सोचोगे और भी चीज़ें. पहले क्या होता था, रूरल इंडिया पे मूवीज़ वगैरह आती थी या कुछ भी, तो कोई भी ऐसी रेवलेशन जैसे कि जिन पे बैन लगा दिए जाते हैं, जो मूवीज़ हीरो वर्शिपिंग करवाती है पॉलिटिशियंस वगैरह की, वो मूवीज़ ठीक हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं. नाउ कमिंग हियर, आगे चलते हैं फटाफट. ये थोड़ा सा पढ़ लेना. CBFC श्याम बेनेगल कमेटी लगाई गई थी सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 को अमेंड करने के लिए. नाउ लिंक इट विद आर्टिकल 51A साइंटिफिक टेम्पर. आर्टिकल 51A इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. Tenure of CIC and SIC can now be changed by the government as per its whims and fancies. इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा किसी और दिन. दिव्यानी and others, right? Yes. Official secrets. प्रहलाद, आप जो कह रहे हो, प्रहलाद इज ट्राइंग टू से कि कुछ एक्ट्स को क्लासिफाइड कर दिया जाता है, जैसे कि गांधी जी की डेथ कैसे हुई थी, नाथूराम गोडसे ने कैसे मारा या कुछ, ठीक है. क्या आरटीआई बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ डी आर्काइविंग. आर्काइव कर दिया जाता है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर, या इस रिकॉर्ड को जला दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. पुराने रिकॉर्ड भी निकलने चाहिए, ठीक है. जैसे कि अब 10 साल बाद राइफल पे अगर कोई रिसर्च करना चाहे, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहे, तो वो होना चाहिए अवेलेबल, ठीक है, कि कैसे हुई लाल बहादुर शास्त्री की डेथ, वो होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए. बट ठीक है, प्रेजेंट में जो स्कैम्स हो रहे हैं उसको रोक लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना. तो जो डैमेज हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है. now this is there.
So this is there, right? Now Article 51A and 42nd Amendment of the Constitution in 1976, it shall be the duty of every citizen. तो इस स्टेटमेंट के साथ में आप ये रीड कर सकते हो, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इम्प्लाइज एवरी सिटीजन. ये वन बाय वन इसको आप रीड करते जाओ फटाफट. फ्रीडम फ्रॉम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की तर्ज पे ये कहाँ तक उचित है कि फेयर एंड लवली, 14 दिनों में गोरापन, ठीक है. राइट टू प्रोपिगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स. आई कैन प्रोपिगेट व्यूज ऑफ अदर्स एंड आई कैन क्रिटिसाइज एनीबडी, बी इट प्राइम मिनिस्टर, CJI. जैसे मैं DNA में करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है. तवा लगा के ये सब बोलते हैं ना मीडिया वाले, वही काम करना पड़ता है, राइट. तो थोड़े 2-4 बातें अपनी तरफ से ऐड कर दी और बोला कि वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है. राइट टू प्रोपिगेट वंस व्यूज. PIL फाइल करना या किसी और गरीब लोगों के, जो लोग लाचार हैं, उनके व्यूज को आवाज़ देना भी इसमें कवर्ड है, राइट. रेसिस्ट जो चीज़ें हैं, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स. राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस. आपकी कॉन्वर्सेशन कोई ना सुने, इसके लिए भी यहाँ पे राइट्स हैं. राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो ये इसमें इम्प्लाइड है, यहाँ से आता है मीडिया का राइट. राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय और स्ट्राइक कॉल्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन. राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, दिस इज ऑल्सो कवर्ड. फ्रीडम ऑफ साइलेंस, गांधी जी वाली जो कंट्री है हमारी, उसलिए फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज ऑल्सो देयर. Right against imposition of pre-censorship on newspaper. Right against that if I am running a newspaper, I have got a right. अच्छा, अगर मेरा वीडियो YouTube जानबूझ के डिलेड रिलीज करे क्योंकि मैं उसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ, या Facebook मेरी पोस्ट को डिलीट कर दे या विजिबल नहीं करवाए, क्या वो गलत है? नहीं, बिकॉज दिस इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट गवर्नमेंट. यूट्यूब इज अ प्राइवेट एंटिटी. क्लियर? So this is there. Now coming here, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन. रुबीना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते. राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक, राइट. राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग बट विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट. अब अमेजन ने क्या किया, USA में क्या है, उनके वहाँ पे जो फुटमैट वगैरह बना देते झंडे का, ठीक है. अमेजन ने हमारे यहाँ क्या किया, हमारे नेशनल फ्लैग का फुटमैट लॉन्च कर दिया. उनको लगा बहुत अच्छा बिकेगा 15 अगस्त से पहले. नोटिस चला गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्हें एकदम से फुटमैट विड्रॉ करना पड़ा, राइट. तो ये सारी चीज़ें अलाउड हैं. फ्लैग कोड विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय होम मिनिस्ट्री इज़ नॉट अ लॉ, इट इज़ जस्ट अ कोड, राइट. बट इसको यूज़ किया जा सकता है अरेस्ट करने के लिए, कोई भी यदि हमारे नेशनल सिंबल्स को डिसऑनर पहुंचाता है, राइट. यस प्रतीक, यू आर राइट. ओके, नाउ दिस इज देयर. Coming to the other aspects, explanation, contemporary relevance. Right to profession is tempered by another citizen's right to good services. Quacks versus genuine doctors. Misleading advertisements. But हमारी जो bodies हैं, regulators हैं, वो ही इसे अच्छे से implement नहीं कर रही, ठीक है. प्रेस को रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है. क्या आज सभी फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होनी चाहिए? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मेरे को ये बोला गया कि भैया तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर तुम्हारा राइट वॉयलेट हो गया. मेरे पास टाइम है? जब CJI के पास, जुडिशरी के पास टाइम नहीं है, बैकलॉग ऑफ केसेस इतना ज़्यादा है, तो देयर शुड बी proactive protection of rights rather than giving the citizens the right to go to Supreme Court for getting the rights implemented. समझ में आया? Clear? So this is there. So this is there. Now coming to the other aspects, ये सारी चीज़ें हैं. FSSAI और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुड बी ट्रेस्ड टू आर्टिकल 19 क्लॉज 6. अब
रेगुलेटर्स को अपना काम सही से करना चाहिए, मीडिया फॉर्म्स हैं या जो भी ये रेबल राउजिंग चल रही है उसको पहले से ही रोकना चाहिए, ताकि इससे पहले कि फंडामेंटल राइट को डैमेज हो और सिटीजन्स को अपने पैसे फूकने पड़े, उससे पहले ये है कि उनको ये किया जाए, राइट। नाउ कमिंग टू दी अदर एस्पेक्ट्स, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये कुछ नहीं करता फंडामेंटल राइट्स को लेके। FSSAI, इवन एज कंट्रोवर्सीज आर हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, लैंसेट जर्नल या कैंसर पे स्टडीज आ रही हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे स्टडीज आ रही हैं, डायबिटीज कैपिटल इंडिया को बोला जा रहा है, बट FSSAI फूड के मैटर पे, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट, बट FSSAI इज साइलेंट। क्लियर? Clear? So this is there. Now Article 20, protection in respect of conviction for offences. No person, it is available to non-citizens, the aliens, the foreigners as well. No person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor he be subject to penalty greater than that which might have been inflicted under law in force at that time. यानी कि क्रिमिनल लॉ में इंडिया में प्रोएक्टिव, क्रिमिनल में प्रोएक्टिव कैन अ पुअर पर्सन, यस दैट इज द कंसर्न, दीप ज्योति दैट इज माय कंसर्न, राइट। कोई हर गरीब आदमी तो यहाँ पे कोई प्रशांत भूषण को या राम जेठमलानी को हायर नहीं कर सकता है, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अब जो जिनके लिए फेयर एंड लवली की ये ऐड बनाई जाती है या कुछ ऐसा है, उनसे पूछो कि क्या वो अपने राइट टू बी, जो भी उनके बॉडी कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि मैं फेयर एंड लवली नहीं खरीद सकता। जो फेयर एंड लवली नहीं खरीद सकता वो फेयर जस्टिस कैसे पाएगा, राइट। सो दिस इज देयर। नाउ कमिंग हियर, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड and punished for the same offence more than once. No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. कोई पर्सन को पुलिस, जैसे माहौल ठीक है मूवी है, पंजाबी की एक मूवी है, उसमें क्या होता है, मूवी में डायरेक्टर मूवी में जसपाल भट्टी सेज कि माहौल को ठीक रखना है, ठीक है। किसी को भी अरेस्ट करके बोला जाता है कि तुम ये उगलो कि तुमने चोरी करी है, तुम्ही ने मर्डर करा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें गलत है। क्लियर? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। नाउ जस्ट 1 minute. सो दिस इज देयर, नो पर्सन शैल बी एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ये क्लियर है, सिंपल सी चीजें। अब इसको मैं बता रहा हूं, अगर यहां पे एक तो पर्सन, इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। नो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन क्रिमिनल लॉ। अगर कोई क्रिमिनल लॉ में, मान लो कि किसी ने मर्डर किया या किसी ने कोई क्राइम किया, उसके बाद उस क्राइम की सजा, किसी ने कोई क्राइम किया 20 अगस्त को, ठीक है, उसके बाद उस क्राइम की सज़ा आपने बढ़ा दी। ये कहा कि पहले इसके लिए 3 years होती थी, अब 21 अगस्त से अमेंडमेंट लागू कर दिया और बोला कि अब इसकी सज़ा जो है 7 years होगी। ये गलत है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। बिकॉज इफ दैट हैड दैट पर्सन नोन अबाउट इट, हैड दैट पर्सन in the know of this thing that the punishment is 7 years, he wouldn't have committed that crime. Clear? सिविल लॉ में अगर देखो, ये एक कोई भी रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, क्लियर, हेयर इज द ट्रैफिक सिग्नल, हेयर इज द ट्रैफिक सिग्नल। अब किसी पर्सन ने एक लॉ में लिखा है कि अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल जंप करता है, 19 अगस्त को लॉ में ये लिखा है, अगर इफ एनीबडी क्रॉसेस द जंप्स द ट्रैफिक सिग्नल, ही वुड बी चार्ज्ड विद अ पेनल्टी ऑफ ₹500। 20 अगस्त को जिस पर्सन ने 19 अगस्त को रेड सिग्नल क्रॉस किया बाइक पे, उसको ये बोला गया 20 अगस्त से इसकी सज़ा हो गई ₹5,000 फाइन प्लस ₹5,000 फाइन प्लस 3 months इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये गलत है।
आप फाइन इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि वो सिविल ऑफेंस है, बट अगर किसी को 3 महीने जेल में डालना है तो आप ये बैक डेट को किए गए, पिछली तारीख को किए गए किसी ऑफेंस को अगली तारीख से 21 अगस्त से चेंज करके उसको क्रिमिनल करार नहीं दे सकते। या 3 महीने की सज़ा अगर 19 अगस्त को थी तो उसको 6 महीने की नहीं कर सकते। सिविल ऑफेंस आप बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली लगा सकते हो, क्रिमिनल ऑफेंस आप नहीं लगा सकते। क्लियर? डन? क्लियर है ये सबको? फाइन में नहीं होता ये फॉलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन केस में अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया जाता है तो उस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को बैकडेट से लगाया जा सकता है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के साथ सजा देना वो नहीं लगाया जा सकता। क्लियर? क्लियर एवरीवन? So this is there. Now explanation: an ex post facto law is one that imposes penalties retrospectively, retroactively, that is upon the acts already done, or which increases the penalties for such acts. The enactment of such a law is prohibited by the first provision of Article 20. Ex post facto, after the fact has occurred, post the occurrence of the fact, law is one that imposes penalties from the back date retroactively, that is upon the acts already done. ठीक है? Such a law is prohibited by the first proviso of Article 20. However, this limitation is imposed only on criminal laws and not on civil laws. Clear? All right. Prateek, there is no regulator for the Supreme Court. The protection against double jeopardy is available only in the proceedings before a court of law or a judicial tribunal. In other words, it is not available in the proceedings before departmental or administrative authorities, as they are not of judicial nature. The protection against double jeopardy is available only in proceedings before a court of law. Double jeopardy क्या होता है? अगर आपने एक बार गलती करी तो आपको एक बार मम्मी ने चांटा लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 बार गलती करोगे तो 2 बार चांटा लगेगा, लेकिन एक गलती के लिए 2 बार सजा मिलती है तो उसे डबल जेपडी कहा जाता है, ठीक है। डबल जेपडी इज नॉट अलाउड एज पर दिस आर्टिकल। डबल जेपडी इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई IAS ऑफिसर है, उसने ब्राइब लिया, ठीक है, मान लो कोई IAS ऑफिसर है, उन्होंने ब्राइब लिया। अब ब्राइब लेने के लिए उन्हें एक सज़ा मिलेगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जुडिशरी में। दूसरी पनिशमेंट उन्हें मिलेगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उन्हें डिसमिस किया जा सकता है। दीज टू आर सेपरेट थिंग्स। इंक्वायरी और any kind of sentence or punishment given by department is one thing that shall not be counted as double jeopardy, ठीक है। लेकिन अगर गुरमीत राम रहीम का केस लें, उस केस में क्या हुआ? गुरमीत राम रहीम ने 2 क्राइम करे, नारकोटिक्स के अंडर क्राइम किया और किसी फीमेल को अगवा किया, बच्चे को गायब किया या कुछ भी ऐसा, लेडी को गायब किया, ठीक है। 2 क्राइम के लिए अलग अलग सजा, एक की 7 साल, दूसरे की 4 साल, ठीक है। किसी को बंदी बनाना विद द इंटेंट टू रेप और विद द इंटेंट टू कीप हिम और हर एज होस्टेज, वो अलग अलग ऑफेंस हैं। तो मतलब समझ में आ रहा है? क्रिमिनल लॉ में 2 अलग ऑफेंस हैं तो 2 बार सजा मिल सकती है, लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ में भी 1 बार ऑफेंस है और अगर आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंटल आपने गलत कर दिया तो वो सजा अलग मिलेगी। किसी ने चेक बाउंस किया, किसी का चेक बाउंस हो गया, विजय माल्या ने चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तो वो उसकी सज़ा अलग।
अगर विजय माल्या भाग जाएंगे तो वो भागने का दूसरा क्राइम हो गया ना, फ्यूजिटिव हो गए वो, ही वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव, तो वो सजा अलग। लेकिन अगर कोई एक बार क्राइम करता है तो उसे ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट अलग सजा देगा, सुप्रीम कोर्ट अलग। अगर कोई इंटरस्टेट क्राइम है तो ऐसा नहीं है कि पंजाब अलग सजा देगा और हरियाणा अलग, ये मतलब है इसका। क्लियर? एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, देखो शशिकला के ऊपर, शशिकला ऑफ तमिलनाडु, उनके ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस चल रहा है। अब डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स में केस में 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है, 3 इयर्स, ये एक चीज़ है। दूसरा लॉ एक और है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो ये कहता है इफ समबडी हैज बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ corrupt practices, if somebody has been held guilty of corrupt practices, then that person should not be allowed to contest elections for 4 years, 4 years after the term of sentence। तो यानी कि शशिकला अब 4 years, ये क्योंकि ये आरपीए में दे रखा है फॉर इलेक्टोरल क्लींजिंग, प्लस this 4 years plus 3 years। yes साकेत, for a check bounce one can file a civil। देखो अभी सिविल केस, अगर कोई चेक बाउंस के लिए नहीं देता पैसे तो उसके ऊपर उसको सिविल केस के अंदर सजा होगी। क्लियर? तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन वो सिविल के अंदर सजा मिलेगी, ये सारी, ठीक है। तो वो सजा सिविल ऑफेंस के अंदर भी सजा होती है, ऐसा नहीं है कि सिविल के अंदर इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, राइट। टैक्स ना पे करना, फॉर एग्जांपल अगर कोई टैक्स नहीं पे करता तो उसके लिए सजा होती है, लेकिन अगर टैक्स ना पे करने की बजाय कोई भाग जाता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव, द पनिशमेंट गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज डिफरेंट, ठीक है, पनिशमेंट गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज डिफरेंट। is not to be counted as a punishment under the act। उस एक्ट के अंडर एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। ये डबल जेपडी नहीं है, आपने पैसे नहीं दिए उसके बाद आपको क्रिमिनल कार्रवाई करी जाएगी, उसके बाद आपको मतलब जेल में भेजा जाएगा। ऐसे तो फिर हर कोई पैसे मुकर जाएगा, राइट। और ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या बोलेंगे, तुम जाओ, माफ किया तुम्हें, नहीं ना, फिर तो हर कोई बिजनेस करने लगेगा, फिर तो हर कोई विजय माल्या हो लेगा, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। नाउ यस, सो रवि, इट इज क्लियर टू यू, इट सीम्स एवरीबडी, इज दिस फाइन। तो ये दो क्लॉज हो गए इसके। इफ एनी ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर मोर देन वन लॉ, द ऑफेंडर कैन नॉट बी चार्ज्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। हाउएवर, अब देखो इसमें एक प्रेडिकेट ऑफेंस का फिनोमिना होता है, ये मैंने नहीं बताया आपको, बता रहा हूं। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस विच प्रिसीड्स द कल्मिनेटिंग ऑफेंस, ठीक है। कभी कभी कुछ ऑफेंसेस में, जैसे कि ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट में या कुछ ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में, अगर किसी के पास, ध्यान से सुनना, अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए पाए गए, ठीक है, अब ये 10 करोड़ रुपए की एक्सप्लेनेशन ये पर्सन नहीं दे पा रहा। पुलिस को पीछे का, अगर पुलिस को ये पता है, कोई ऐसे सुराग मिल गया, कुछ प्रूफ मिल गया दैट दिस इज मनी जनरेटेड फ्रॉम ड्रग पेडलिंग, तो पुलिस को अगर इस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलवाना है क्योंकि इसने ड्रग पेडलिंग करी, संगीन अपराध है ड्रग पेडलिंग, तो पुलिस को ये प्रेडिकेट ऑफेंस, जो पीछे का ऑफेंस है, उसके तार जोड़ने होंगे। अगर पुलिस नहीं जोड़ पाएगी तो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस चलेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का या ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट के तहत कड़ी सजा नहीं मिल पाएगी। प्रेडिकेट ऑफेंस अगर प्रूव हो जाता है तो एक्स्ट्रा सेंटेंस ऑफ 13 years plus 7 years for having disproportionate assets which are not accountable।
जस्ट एक एग्जाम्पल, समझ में आया? अब दोनों ऑफेंस यदि अलग अलग हैं, दिस प्रेडिकेट ऑफेंस इज लीडिंग टू द मेन ऑफेंस ऑफ जनरेटिंग मनी। प्रेडिकेट ऑफेंस कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, ड्रग पेडलिंग या एनिमल स्किन ट्रैफिकिंग, कुछ भी। प्रेडिकेट ऑफेंस कभी कभी प्रूव नहीं हो पाता, लेकिन संपत्ति लोगों के पास ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? ऐसे बहुत से ऑफेंसेस हो सकते हैं। अब इन दोनों के लिए अलग अलग, लेकिन इसके लिए अगर नहीं प्रूव हो पाएगा तो 7 ईयर्स। अब इसी में ही पुलिस ये बोले कि देखो इसके पास पैसे मिले हैं, इसको तो ड्रग पेडलिंग का ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। अब लॉ में आप ऐसा नहीं लिख सकते, पार्लियामेंट भी ये नहीं लिख सकती कि किसी के भी पास आय से ज़्यादा संपत्ति मानी जाएगी तो वो ड्रग पेडलिंग ही उसका जरिया माना जाएगा। क्लियर? Very nice. Arya series on Netflix. Very nice. So this is there. Now, सभी ने नहीं देखी होगी वो। डाकू साकेत कर लेते हैं प्रतीक क्यों, राइट? एंड साकेत, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन दी वोल्टेयर्स कोट, राइट? I wholly disapprove of what you say, but I'll defend to my death your right to say it. It is a mere play of 5 minutes for me. जो आप बोल रहे हो वो दिखेगा ही नहीं, but अच्छा लगता है आप बीच बीच में ये बोलते हो, right? And yes, I know the market very well. I know the market so much that if I do not earn for my whole of life, I would be able to manage my life very well, even better than the standards of an IAS officer. You as an IAS officer would be able to get, right? So I know the market, but I know how to teach without the air conditioner. I know how to keep my throat well. I know how to give these examples. That is what keeps me interested in this. There are some professions which are very close to your heart, right? और UPSC छोड़ने का आपने पूछा, किसने पूछा था? रुबीना। UPSC छोड़ने का कुछ ऐसे हुआ कि इसमें इंटरेस्ट बढ़ते चले गया, राइट? एंड आई वॉज गेटिंग रिकग्निशन एंड एवरीथिंग, तो लगा यही अच्छा है, और अल्टीमेटली सिलेक्शन होता तो भी इलेक्शन में आना था, तो फिर सोचा अब एक हद तक टाइम दे लिया है इसको, कुछ ऐसा किया जाए, राइट? सो दैट इज देयर। नाउ कमिंग हियर, नो दैट्स ओके, आई मीन बीच बीच में आप लोग मजाक करते हो, अच्छा लगता है, बट हद से ज़्यादा नहीं, है ना? दोनों को लपेटो, वेरी नाइस। So this is there. Is it clear to everyone? 3 चीजें हैं इसमें. No retrospective amendment in criminal law. Person, and regarding the money, my previous organization was paying me a decent amount of money. Had I been interested in money and market, I would have continued over there, with due respect to them, right? Now, I don't get hurt so easily. Had I got hurt yesterday or today, you wouldn't have been here commenting, right? So this is there. It is available. इसीलिए देखना, कोई भी मैं किसी YouTube वगैरह के नीचे कोई comment delete नहीं होता, कभी भी delete नहीं होगा, right? Now, हाँ, अगर कोई दूसरी organization होती तो delete हो जाता, but ये क्योंकि JVs है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. Now, coming here, the protection against self-incrimination extends to both oral evidence and documentary evidence. Narco test is thus prohibited. देखो, self incriminating evidence, बोल तूने चोरी की है, बोल तूने चोरी की है, उसके लिए corroboratory evidence होना चाहिए, right? corroboratory evidence, corroborate करने के लिए, जैसे आरुषि हेमराज मर्डर केस में क्या हुआ? आरुषि हेमराज मर्डर केस में जब तक वो चाकू नहीं मिला तब तक उस सर्वेंट को दोषी नहीं ठहराया गया, पुलिस ने उससे जबरन उगलवा लिया, इसीलिए हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी है, सेपरेशन है। पुलिस इज एन एग्जीक्यूटिव विंग, ठीक है? पुलिस एक एग्जीक्यूटिव विंग है, तो पुलिस तो उगलवा लेगी क्राइम को सॉल्व करने के लिए, बट जज के सामने अगर मुजरिम खुद बोल दे कि हाँ मैंने चोरी की है, फिर भी पुलिस को कोरोबोरेट करने के लिए एविडेंस देना जरूरी होता है, ठीक है? डन?
फाइन फॉर एवरीवन? क्लियर है? कुछ एस्पेक्ट रह तो नहीं गया, एक बार चेक करने दो. नो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन ओनली क्रिमिनल. ध्यान से पढ़ना एग्जाम में जब आएगा. अगर सिविल लिखा हो तो गलती नहीं करनी है. पर्सन मीन्स इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स. नाउ टाइम फॉर योर डाउट्स गाइज. टाइम फॉर योर डाउट्स. पानी दे दो. सरेंडर अगर कोई करता है, अगर कोई कुछ आई विटनेस बनता है या कुछ ऐसे सरकार की मदद करता है तो उसके लिए कंसेशन दिया जाता है. समवन डूइंग अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर लास्ट 10 years एंड गॉट कॉट फॉर मर्डर. तो अब उसमें एक बार बार वही सेम चीज़ कितनी बार की, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी मिल जाएगी. ठीक है. लीगल पर्सन, अंकिता, लीगल पर्सन होता है कंपनी इज अ लीगल पर्सन. आई एम ऑल्सो हैविंग अ लीगल एंटिटी बट आई एम अ नेचुरल कम लीगल पर्सन. राइट. प्योरली लीगल पर्सन होगा जो कंपनी है, जो रजिस्टर्ड इन द आइज ऑफ लॉ है. कंपनी हैज गॉट अ लीगल एंटिटी ऑफ इट्स ओन बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी कंपनीज एक्ट 1956. Supreme Court has declared the narco test or DNA testing as self-incriminating. Okay, it is allowed on a selective basis in cases like Ajmal Amir Kasab or like that. Complicated cases and those cases which arouse the public conscience. Clear? Equal Opportunity Commission you said to remind. Okay, we'll talk about this tomorrow. Arshika, I'm writing it here. प्रतीक कल से ये रिज्यूम हो जाएगा. ठीक है, कल से पक्का ये रिज्यूम हो जाएगा. अभी शी ज्वाइन टुडे बट बिकॉज ऑफ रेनफॉल we could resume our work in the second half of the day today, not before that. And second half of the day starts at 1. So तब 2 बजे आपकी क्लास का टाइम हो गया इसीलिए. If a crime has interstate thing, what will be the procedure? तो जिस दोनों में से अगर ये पार्टी A है अफेक्टेड पार्टी एंड ये है एक्यूज्ड पार्टी, तो दोनों में से किसी भी स्टेट में मुकदमा चलाया जा सकता है. दोनों में से किसी भी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में. पर्सन ए जो अफेक्टेड पार्टी है, पर्सन सी जो जिसके ऊपर एलिगेशंस है कि इसने ऑफेंस किया है. ठीक है. यस, दैट इज द रीजन दैट लाई डिटेक्टर टेस्ट्स आर नॉट अप्रूव्ड इजीली बिकॉज राइट टू साइलेंस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19. And a person is allowed to preserve his or her bodily integrity as well. All right. So I haven't left any doubt here. For example, someone doing ये भी हो गया, human trafficking ये भी हो गया. All right. Thank you guys. Good night everyone. Thank you.